Hello, good afternoon. Today we are going to learn the chapter Drainage, Geography, chapter number 3, NCERT class 9. So, before learning the chapter, going through the chapter, I will provide you a small brief overview of the chapter, what we are going to learn in this chapter. So, सबसे पहले तो we'll understand the meaning of the drainage, what is drainage, and then we'll learn the drainage basin. This is given in the very first paragraph of NCERT. The two terms, what is drainage basin, what is water divide. उसके बाद we learn, because this chapter is given in the context of India, so then we learn the drainage basin in India. So basically it is divided into two parts. First one, the Himalayan river system, and second, the peninsular river. So ये जो Himalayan river system है, in this we learn three major river system: the Indus river system, the Brahmaputra river system, and the Ganga river system. And then comes to the peninsular rivers. Peninsular rivers में NCERT में there are six river systems are given. तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले नर्मदा, then Tapi river system, and then Mahanadi river system, Godavari river system, Krishna river system, and then Kaveri river system. उसके बाद few key terms we'll understand. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, मियंडर्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं, एस्ट्रीज क्या होती हैं, गॉर्ज क्या होते हैं, ऑक्सफोर्ड लेक्स क्या होते हैं. All these key terms are the foundation of this chapter. तो उन सारे terms को हम डिटेल में समझेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे lakes. The next topic is lakes. What different types of lakes are found in India? Basis on the origin. कि कोई भी lakes बनती कैसे है, उसके बेसिस पर इंडिया में कितने टाइप्स की lakes है, lakes का importance क्या है, और lakes को हम कैसे सेव कर सकते हैं. उसके अलावा लास्ट में टॉपिक इज रिवर के इंपॉर्टेंस, बिकॉज चैप्टर इज ऑल अबाउट द रिवर एंड वाटर सिस्टम. तो हम ये रिवर के बारे में पढ़ेंगे. एनसीईआरटी में दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर in economy, but we will not understand only in terms of economy. We will also see other aspects of the importance of river. और उसके बाद जहाँ पे भी ये इस तरह के टॉपिक आते हैं, conservation, environmental conservation, so the river conservation and the river pollution, we will learn that also. तो यहाँ से बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ये दोनों रिवर सिस्टम के डिफरेंस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. So उसके अलावा these are the important terms to understand these topics only. So this is the brief of the chapter, what we are going to learn in this chapter. So first one, let's start from the meaning of drainage. Drainage का meaning होता है the natural system from where how the water is moving ultimately to the sea, how the water is coming on the land, how the water is flowing on the land, and then ultimately how the water is going into the sea. So water कहाँ से आएगा, एक तो रेनफॉल से आएगा, एक अपने ओरिजिन से आएगा, ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो सकता है, वहां से आएगा. उसके अलावा वो लैंड पर फिर कैसे मूव कर रहा है, और लैंड पर मूव करने के बाद वो फाइनली सी में कैसे ड्रेन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज. और इसके बाद एक टर्म आता है ड्रेनेज बेसिन. सो द बेसिक मीनिंग ऑफ ड्रेनेज बेसिन इज वो एरिया जहां पे उस रिवर का वाटर फ्लो करता है, उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. अगर हम एग्जांपल लें तो गंगा ड्रेनेज बेसिन अगर हम देखेंगे तो जिन एरियाज का वाटर गंगा रिवर में फ्लो होकर फाइनली गंगा में ड्रेन होता है, यानी गंगा में गिरता है, और गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू वो अल्टीमेटली सी में जाता है, उस एरिया को हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. सो फॉर एग्जाम्पल ये नदर एरिया जो गंगा प्लेस होते हैं, वो जो एरिया है पूरा, उसको हम गंगा ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे. नाउ कम्स द वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड ये जो ड्रेनेज बेसिन है, लेट्स सपोज अगर हम गंगा का ड्रेनेज बेसिन बोल रहे हैं, उसके बीच में कोई उठी हुई लैंड हो सकती है, माउंटेन हो सकता है, प्लेट्यू हो सकता है, एनी हाई एलिवेटेड लैंड जो एक ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करती है, उसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट वाटर डिवाइड है इंडिया में. नाउ वी लर्न द ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. तो इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, लेकिन हम कुछ मेजर रिवर्स पढ़ेंगे. उनके ओरिजिन के बेसिस पर ये जो रिवर सिस्टम है, ये दो पार्ट में डिवाइड है. एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और एक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. So हम हिमालयन और पेनिनसुलर का, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है. तो हम इन दोनों को पहले डिफरेंस देखते हैं. हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, इंपॉर्ट ओरिजिन के बेसिस पर ये दोनों का डिवीजन है. तो हिमालयन रिवर्स वो सारी रिवर्स होती है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हिमालय में ग्लेशियर्स के थ्रू ओरिजिनेट होती है. पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दे ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू.
तो यह मेजरली होती है सेंट्रल हाईलैंड से। ये जो पेनिनसुलर प्लेटिव है वहां पे बीच सेंट्रल एरिया में जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर से ऊपर वाले पोर्शन को हम जो है सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, एंड बिलो द नर्मदा रिवर्स द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटिव इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेटिव। सो ये जो पेनिनसुलर रिवर होती है ये मेजरली दो जगह से ओरिजिनेट होती है। एक तो ये सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है, यानी नदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटिव से ओरिजिनेट होती है, और सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटिव में ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। The rivers which originate from the Himalayas, they generally drain their water in the Arabian Sea, and the rivers that originate from the central highland, they also drain their water in the Arabian Sea. But the rivers that drain their water, that originate from the western Ghats, they generally drain their water in the Bay of Bengal. तो ये हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल है सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होने वाली दो रिवर्स का, फर्स्ट वन इज नर्मदा, सेकंड वन इज तापी। तो ये दोनों सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होते हैं। एनसीईआरटी में और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इन रिवर सिस्टम को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, और ये अपना वाटर ड्रेन करते हैं अरेबियन सी में। अब बिकॉज ये हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है? वन इज रिवर एंड वन इज द हिमालयन ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे पानी का अमाउंट इट इज वेरी मच, सो दीज रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर, सो दैट मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। Here, these rivers are mainly rainfall dependent. So, because they are rainfall dependent, they are seasonal rivers. When in the monsoon season, they have a lot of water, but when there is no monsoon season, in the dry season, they do not have water. They have water, means the amount of water is very less. So, because they are moving from Himalayas and draining into Arabian Sea, the course is very low. Course means रास्ता, वो जो distance travel कर रही है rivers from Himalayas to sea, ultimately river को sea में मिला है, तो they have the longer course in comparison to the peninsular plateau. Peninsular rivers they have the shorter course. या तो वो सेंट्रल हाईलैंड से मिलके अरेबियन सी में चली जाएगी, या फिर if they are originating from western Ghats, they will finally drain into the Bay of Bengal. Now the important features. जो भी rivers who originate from the Himalayas, they form certain features. For example, deltas. We will understand the meaning of tributaries, distributaries, but here the important feature is the Himalayan rivers form deltas, they form meanders, they form oxbow lake. This is the characteristics features of the Himalayan river system. And one important characteristics feature of the perennial river system is the formation of estuaries. I will discuss later what is the meaning of estuaries. So the example of Himalayan river system is Indus river system,